Good afternoon and welcome to respected chairman sir, respected administrator sir, other dignitaries, my dear colleagues and my dear students. I also welcome our alumni, Mr. Satyendra Kumar. Today, EN Department of Dr. K.N. Modi Engineering College is going to start the webinar on the topic antenna and wave propagation. The faculty coordinator is Mr. Satish Chand and student coordinators are Mr. Sri Ram and Mr. Vishesh Kumar. Now I would like to invite Mr. Satish Chand to start the webinar. Thank you. Mr. Satish. Thank you, sir. Thank you, sir. And good afternoon to all. First of all, I would like to thank Director, sir, my college, and our alumni, Mr. Satyendra Kumar, and student that you all are here to attend this webinar. It will definitely motivate and encourage our students. Today's webinar topic is antenna and wave propagation, which will be demonstrated by Mr. Sriram and Mr. Vishesh Kumar and Mr. Sunil Kumar. Now, I would like to call Mr. Sriram to start this webinar. Please, Sriram, come and start. Good afternoon, my all faculties and director, sir. I am Sriram. I am pursuing diploma in electrical and electronics engineering from Dr. K.N. Modi Engineering College. Today, we will discuss the topic antenna. Discuss in this webinar introduction. What is antenna? A transmitter side type of antenna, signal modulation, EM wave generation, antenna polarization, radiation pattern of antenna, antenna directivity, antenna band. So first of all, I start to introduction. In present time, we can see different shape and size of antenna in our daily life. हम अपने दैनिक जीवन में भिन्न आकार और प्रकार के एंटीना देख सकते हैं. And today, smart communication is completed due to these different type of antenna. और आज का स्मार्ट कम्युनिकेशन इन भिन्न प्रकार के एंटीनास के द्वारा ही पूर्ण हो पाया है. एंटीना has a wide application ranging from telecommunication to biomedical और एंटीना के अनुप्रयोग टेलीकम्युनिकेशन से बायोमेडिकल तक हुए हैं. Application of antenna in telecommunication is known to all. Antenna are also used in रिमोट सेंसिंग एंड डिफेंस रेडार. और एंटीना का प्रयोग डिफेंस रेडार और रिमोट सेंसिंग में भी होता है. एंड एंटीना इज ए मेटेलिक apparatus फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और एंटीना एक धात्विक उपकरण है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्राप्त करता है और भेजता है. The advances in telecommunication, the requirement of different type and compact antenna increased significantly. और इस एडवांस टेलीकम्युनिकेशन में भिन्न आकार और प्रकार के जो छोटे एंटीना है उनकी आवश्यकता होती है. In mobile communication, the requirement for smaller antenna is quite large. और मोबाइल कम्युनिकेशन में छोटे एंटीना की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा हो गई है. नेक्स्ट, एंटीना usually metallic device as a rod or wire for radiating or receiving radio waves. और यह अधिकतर एक धात्विक उपकरण है जो कि हम छड़ या तार के रूप में देखते हैं जो कि रेडियो तरंगों को प्राप्त करता है और उत्पन्न करता है.
हम यहाँ पर स्लाइड शेयर की हुई स्लाइड में कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं जो कि एंटीना की है। जो फर्स्ट वाली पिक्चर है वो एक रिफ्लेक्टर एंटीना की है और दूसरे वाली जो चित्र है वो एक डायरेक्शनल एंटीना की है और थर्ड वाली जो है वो एक यागी एंटीना की है जिसका इस्तेमाल हम टेलीविजन सिग्नल्स प्राप्त करने में करते हैं। An antenna is a metallic conductor systems capable of radiating and capturing of electromagnetic energy। और एंटीना एक धात्विय चालक सिस्टम होता है जो कि विद्युत विद्युत चुम्बकीय एनर्जी को उत्पन्न करता है और प्राप्त करता है। इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी to electromagnetic energy और electromagnetic energy to electrical energy। और ये विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हम नीचे चित्र में देख सकते हैं शेयर की हुई स्लाइड में कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट होता है हमारा ट्रांसमीटर और सेकंड होता है हमारा रिसीवर। ट्रांसमीटर का काम हम सिग्नल को भेजने में करते हैं और ट्रांसमीटर साइड की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। जब तो सबसे पहले मुझे सिग्नल को इनपुट करना होगा जिस सिग्नल को मैं भेजना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर माइक्रोफोन प्रदर्शित है और फिर जब वो सिग्नल इनपुट हो जाता है तो उस सिग्नल को एम्पलीफायर पर भेज दिया जाता है क्योंकि हमें सिग्नल एक लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना होता है और वहां तक पहुंचने पर सिग्नल हमारा काफी वीक हो जाता है, इसलिए हमें एम्पलीफायर की आवश्यकता होती है और हमें रिसीवर ट्रांसमीटर साइड और रिसीवर साइड दोनों साइड पर एंटीनास की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने बताया कि एंटीना एंटीना विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हमारा ट्रांसमीटर यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को ट्रांसमीटर साइड का जो एंटीना है वो विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है और इस प्रकार हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो गया है। अब उस सिग्नल को रिसीव करना होता है क्योंकि कम्युनिकेशन दोनों साइड से होना आवश्यक होता है, तभी हमारा कम्युनिकेशन पूर्ण होता है। तो अब हमें वो सिग्नल रिसीव करना होगा। तो रिसीवर का जो एंटीना है वो इस सिग्नल को विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा और फिर उसको एम्पलीफायर पर भेज दिया जाएगा। हमें यहाँ पर एम्पलीफायर की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जब सिग्नल एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो काफी वीक हो जाता है, हम उसे इजीली नहीं सुन सकते। सिग्नल को बूस्ट करने के लिए हमें एम्पलीफायर की आवश्यकता होती है और ये सिग्नल एम्पलीफायर से होने के बाद लाउड स्पीकर पर पहुंच जाता है और फिर हमें ध्वनि ऊर्जा में प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार हमारा कम्युनिकेशन पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं ईएम वेव्स की, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे। एज वी नो दैट internet signal is traveled by a optical fiber cable। हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट सिग्नल एक ऑप्टिकल फाइबर केबल में ही गति कर सकता है और electrical energy is traveled by copper wire or aluminum conductive wire। The signal require a medium to transmit from one place to another place। और विद्युत ऊर्जा जो है वो विद्युत सिग्नल जो होता है वो एक कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर में ही गति कर सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। Similarly, an antenna also transmit a signal from one place to another place। और एंटीना भी सिग्नल को इसी प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देता है। लेकिन
but don't require any medium to travel this electromagnetic signal. This signal can travel in a free space or a vacuum, और सिग्नल, लेकिन सिग्नल को किसी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं उनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये मुक्त आकाश और निर्वात में भी गति कर सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, I would like to call my friend Vishesh Kumar to continue this webinar. Thank you, Sri Ram. My name is Vishesh. I am pursuing diploma electrical and electronic engineering from Dr. K.N. Modi Engineering College. जैसे कि आपको श्री राम ने एंटीना के टाइप, एंटीना की वर्किंग और ईएमएफ वेव के बारे में समझाया है, उसे आगे कंटिन्यू करते हुए मैं टाइप ऑफ एंटीना के बारे में डिस्कस करूंगा, यानी कि एंटीना के प्रकार। एंटीना आर मैनी टाइप इन प्रेजेंट टाइम फ्रॉम स्मार्ट कम्युनिकेशन। आज के स्मार्ट कम्युनिकेशन में एंटीना कई प्रकार के हो गए हैं, बट सम इम्पोर्टेंट कैटेगरी एज फॉलोइंग। लेकिन उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट एंटीना के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे, उनके बेस के आधार पर, जैसे रेडिएशन पैटर्न, स्ट्रक्चर, फ्रिक्वेंसी आदि। फर्स्ट है रेडिएशन पैटर्न। रेडिएशन पैटर्न में दो प्रकार के एंटीना है, ओमनीडायरेक्शनल एंटीना, सेकंड है डायरेक्शनल एंटीना। ओमनीडायरेक्शनल एंटीना वे एंटीना होते हैं जो चारों दिशाओं से सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं। सेकंड है डायरेक्शनल एंटीना। डायरेक्शनल एंटीना वे एंटीना होते हैं जो सिग्नल को एक दिशा से ट्रांसमिट या रिसीव करने का कार्य करते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है कि यहाँ पर कई प्रकार के एंटीना दिखाए गए हैं। जो फर्स्ट एंटीना है राइट साइड पर, वो ओमनीडायरेक्शनल एंटीना है। ये एंटीना चारों दिशाओं से सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करने का कार्य करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जब ओमनीडायरेक्शनल एंटीना चारों दिशाओं से सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव दोनों का कार्य करता है, तो हम डायरेक्शनल एंटीना का यूज क्यों करते हैं? इसमें हम डायरेक्शनल एंटीना का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ओमनीडायरेक्शनल एंटीना एक निश्चित स्थान तक सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करता है, जो कि डायरेक्शनल एंटीना की अपेक्षा काफी कम होती है। डायरेक्शनल एंटीना एक दिशा में सिग्नल को काफी दूर तक ट्रांसमिट और रिसीव करने का कार्य करता है। ये एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगा कि एक बल्ब है जो एक कमरे में लगा है, जो सिग्नल को या एक काफी दूर तक फैलाएगा चारों ओर, और उसमें कुछ लॉस होंगे जो सिग्नल को काफी दूर तक नहीं पहुंचाने के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन डायरेक्शनल एंटीना में एक टॉर्च का कार्य करता है जो सिग्नल को काफी दूर और काफी अच्छे कैरियर सिग्नल के साथ भेज सकता है या रिसीव कर सकता है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उनके आकार के आधार पर। पहला है वायर एंटीना। वायर एंटीना वे एंटीना होते हैं जो पुराने समय में हमारे छतों की कार पर होते थे। जब हम रेडियो सुनने के लिए इन एंटीना की लेंथ बढ़ाकर एंटीना को सिग्नल को रिसीव करने का कार्य करते थे। नेक्स्ट स्लाइड। अपर्चर एंटीना। अपर्चर एंटीना वे एंटीना होते हैं जो एक विशेष एंगल पर सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करने का कार्य करते हैं। ये एंटीना, जैसे कि ये लेफ्ट साइड पर एक एंटीना दिखाया गया है, ये एंटीना कुछ इस आकार के होते हैं। थर्ड है रिफ्लेक्टर एंटीना। रिफ्लेक्टर एंटीना वे एंटीना होते हैं जो सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर रिसीव करने का कार्य करते हैं। ये एंटीना हमारे घरों की छतों पर होता है, जो हम डिश आजकल यूज करते हैं। ये एंटीना सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर रिसीव करने का कार्य करते हैं। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर। आरएफ एंटीना। आरएफ एंटीना एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना है जो काफी अधिक फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करने का कार्य करता है। माइक्रोवेव एंटीना। माइक्रोवेव एंटीना वे एंटीना होते हैं जो माइक्रोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट या रिसीव करने का कार्य करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन, उनके ध्रुवीकरण के आधार पर। इसमें भी दो प्रकार के एंटीना होते हैं, ओमनीडायरेक्शनल एंटीना एंड सेकंड है डायरेक्शनल एंटीना। ओमनीडायरेक्शनल एंटीना में दो प्रकार के एंटीना होते हैं, मोनोपोल और डायपोल। मोनोपोल एंटीना वे एंटीना होते हैं जो चारों दिशाओं से सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करने का कार्य करते हैं। बट डायपोल एंटीना दो दिशाओं में सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने का कार्य करते हैं। जैसे कि आपको चित्र में यहाँ पर कुछ एंटीना दिख रहे हैं, इसमें राइट साइड में फोर्थ एंटीना डायपोल एंटीना है। इसमें मोनोपोल के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मोबाइल, रेडियो, रोबोटिक कार, इंटरनेट रूटर। ये
ये एग्जाम्पल मोनोपोल के हैं। मोनोपोल जो चारों दिशाओं में कार्य करता है, इसलिए हमारे मोबाइल इसमें सबसे आजकल का सबसे किफायती एग्जाम्पल है, जो हमारे चारों दिशाओं में सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करने का कार्य करता है। डायरेक्शनल एंटीना, डायरेक्शनल एंटीना वे एंटीना होते हैं जो एक दिशा में सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करने का कार्य करते हैं, बट ये काफी दूर लेंथ तक सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने के कैपेबल होते हैं। इसमें कुछ उदाहरण है: मोबाइल टावर, ऑफिस टावर, रडार, डिश एंटीना, टीवी एंटीना। ऑफिस टावर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एक पर्सनली एंटीना के कार्य करता है। ये एंटीना एक पर्सनली कार्य करते हैं, जैसे कि हम अपने कॉलेज में एक टावर लगाते हैं और उसका एक ऑफिस बनाते हैं जो ऑफिस टू ऑफिस वर्क के लिए आता है। ये एंटीना किसी और के लिए वर्क नहीं करते, ये एंटीना बस ऑफिस टू ऑफिस वर्क करते हैं। ये एक पर्सनल एंटीना का भी कार्य करते हैं। जैसे कि रडार, इसमें रडार का एक डायग्राम दिया गया है। रडार हमारे सिग्नल को एक दिशा में ट्रांसमिट और रिसीव करने का कार्य करता है, जो काफी दूर लेंथ तक करता है। ये हमारे काफी काम आता है। हमारी फौज में इसका काफी यूज होता है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल कॉन्सेप्ट इन टेलीकम्युनिकेशन, modulation is the process of varying one or more properties of a periodic waveform called the carrier signal with a modulated signal original signal that typically contains information to be transmitted। जैसे कि हम जानते हैं, संचार प्रणाली में किसी मैसेज को या अपनी वॉइस को भेजने के लिए एक दूसरे सिग्नल की आवश्यकता होती है। इस सिग्नल को कैरियर सिग्नल कहते हैं। यह सिग्नल मॉड्यूलेटेड सिग्नल या ओरिजिनल सिग्नल के अनुसार बदला जाता है और दोनों सिग्नलों को मिलाने के बाद एक नया सिग्नल बनता है, जिसे मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं तथा इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Most radio system in 20th century use frequency modulation और amplitude modulation for radio broadcast। आज की सदी में हम अधिकतर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, बट हम इसमें भी काफी एडवांस हो गए हैं। हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज काफी कम कर दिया है हम कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हम जब सिग्नल को मॉडिफाई करते हैं तो उसके एम्पलीट्यूड में करते हैं, जिस वजह से उसके एम्पलीट्यूड में नॉइस आ जाती है। इसलिए हम एम्पलीट्यूड का भी यूज काफी कम करने लगे हैं। हम ज्यादातर अपना वर्क फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे ही करते हैं। सपोज अबाउट अ ट्रेन कैरिंग सम पैसेंजर, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रेन दिखाई गई है जो एक कैरियर सिग्नल का काम करती है और पैसेंजर एक ओरिजिनल सिग्नल। कैरियर सिग्नल वह होता है जिसमें कोई डाटा नहीं होता, बट इसकी फ्रीक्वेंसी काफी अधिक होती है, जो सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए काफी कैपेबल होती है। ओरिजिनल सिग्नल वह होता है जिसमें डाटा होता है, इसलिए हम ओरिजिनल सिग्नल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम ओरिजिनल सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल को मॉडिफाई कर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि आप सेकंड चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक बेस बैंड सिग्नल और एक कैरियर सिग्नल दिया गया है। बेस बैंड सिग्नल वही सिग्नल है जिसे हम ओरिजिनल सिग्नल कह रहे हैं। बेस बैंड सिग्नल और कैरियर सिग्नल को मॉडिफाई करके एक नया सिग्नल बनता है, जिसे हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। ये काफी अधिक फ्रिक्वेंसी का होता है, जिसे हम एंटीने द्वारा ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये वेव जनरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर जनरेटेड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के मूव होने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती हैं। एंड इलेक्ट्रॉन जनरेट इलेक्ट्रिकल फील्ड which can visualize as a line radiating for the electron। जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिर अवस्था में होता है तो यह एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने चारों ओर बनाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर दो चार्ज दिए गए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से रे निकलकर नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो रही हैं, और ये जो रे होती हैं इसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो स्थिर चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाते हैं। द मूविंग इलेक्ट्रॉन जनरेटेड अ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल आल्सो बिकम वे फ्रॉम द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जबकि यदि चार्ज मूव करते हैं या चलते हैं किसी माध्यम में, कॉपर में या एल्यूमिनियम में, तो यह एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक धारा दिखाई गई है जिसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है।
धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा को दिखाता है और उन मैग्नेटिक फील्ड उस दिशा को दिखाता है जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इसको हम और आसानी से समझने के लिए राइट हैंड ग्रिप रूल का यूज करते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा को समझाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है और उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती हैं। This combined electrical and magnetic wave reinforce one another. This kind of wave is called an electromagnetic wave. EM wave and light is such a wave. जब ये दोनों फील्ड एक साथ मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। इसी को हम EMF कहते हैं। प्रकाश की इसी तरह की वेव होती हैं। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड दर्शाया गया है और वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड दर्शाया गया है और जेड एक्सिस पर इन दोनों के चलने की दिशा को बताया गया कि ये किस ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सर नेक्स्ट स्लाइड। एंटीना सिग्नल इनपुट एंड EM wave generation. We provide a high frequency signal to antenna input terminal. सबसे पहले हम एंटीना के इनपुट पर एक उच्च आवृत्ति का सिग्नल अप्लाई करते हैं। इनपुट सिग्नल इज द सेम सिग्नल एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यह सिग्नल वही सिग्नल होता है जिसे हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल कह रहे थे। सिग्नल इज साइन वेव में हाफ साइकिल इज पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल इज नेगेटिव। यह सिग्नल एक साइन वेव सिग्नल है जिसका आधा भाग पॉजिटिव तथा आधा भाग नेगेटिव है। As shown is figure, antenna has a positive side and other is negative side. जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, एंटीना के एक तरफ पॉजिटिव साइन बना है तथा दूसरी तरफ नेगेटिव साइन बना है। As wave pulse change, the polarity of antenna is also change. Charge the of vice versa. जैसे जैसे तरंग की पोलरिटी चेंज होती जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर तथा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, एंटीना की भी पोलरिटी चेंज होती जाती है तथा उस पर चार्ज आ जाता है। As the polarity of antenna is changed, the emission of the EMF wave radiation of antenna also change. Means electrical field and magnetic field change pulse as signal change polarity. जैसे ही एंटीना की पोलरिटी बदलती है तो EMF वेव की भी रेडिएशन भी बदलती जाती है, अर्थात इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के उत्सर्जन क्षेत्र भी बदलते जाते हैं। The electrical field is produced in the direction of flow. The current magnetic field is produced with the perpendicular of electrical field. जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उस दिशा में इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है तथा मैग्नेटिक फील्ड उस दिशा के लंबवत होता है। नेक्स्ट स्लाइड। The electrical field and magnetic field is emit at 90-degree angle to each other of EMF wave. EMF transmit in space with a speed of light. इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। यह लाइट ऑफ स्पीड के गति से कार्य करते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायग्राम दिया गया है। इसमें रेड इलेक्ट्रिकल फील्ड को दर्शाता है तथा ब्लू रे मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है और इनकी चलने की दिशा को एक डायरेक्शन द्वारा दिखाया गया है। नाउ आई वुड टू लाइक टू इनवाइट माय फ्रेंड मिस्टर सुनील कुमार यादव कंटिन्यू दिस वेबिनार। थैंक यू विशेष। जैसे कि विशेष ने आगे टॉपिक बताया टाइप्स ऑफ एंटीना के बारे में, उस तरह से मैं आगे बताऊंगा EM वेव प्रोपेगेशन के बारे में। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। I am Sunil Kumar. I am pursuing diploma EM second year from Dr. K.N. Modi Engineering College. When the signal half cycle positive apply on antenna, then the section of antenna is also charged as positive. जब एंटीना पर सिग्नल हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है तो इस सेक्शन पर एंटीना को पॉजिटिव रूप में चार्ज किया जाता है। Other section of antenna is negative charge because negative half cycle is applied on this section. एंटीना के अन्य सेक्शन नेगेटिव चार्ज होते हैं क्योंकि इस सेक्शन पर नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाइड होता है।
Next slide, sir. As we know that signal is sine wave, means its polarity is change after a fixed time period. As the signal polarity change, the antenna polarity is also change. जैसा कि हम जानते हैं कि सिग्नल साइन वेव है, इसका मतलब है कि इसकी ध्रुवता एक निश्चित समयावधि के बाद बदल जाती है, क्योंकि सिग्नल की ध्रुवीयता बदल जाती है और एंटीना की पोलैरिटी भी बदल जाती है. The emitted EM wave pulse is separate from the loop when two electric charge cross to each other and EM pulse propagate in the space. जब EM वेव की पल्स लूप से अलग होती है तो दोनों चार्ज एक दूसरे को मूव करती है, तो ए वेव स्पेस में संचरित करती हैं. एंटीना पोलराइजेशन. If the antenna is placed horizontal, then EM wave also horizontal. If antenna is placed vertical, then EM wave also emit vertical. यदि एंटीना को क्षैतिज रखा जाता है तो EM वेव भी क्षैतिज होता है. यदि एंटीना को वर्टिकल में रखा जाता है तो EM वेव भी वर्टिकल उत्सर्जन करता है. To transmit and receive maximum power, we should be placed both antenna transmitter and receiver in same position. संधारित्र अपने अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें एंटीना ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को एक ही स्थिति में रखा जाना चाहिए. Next slide. If both antenna is placed as horizontal, then known as horizontal polarization. यदि दोनों एंटीना को क्षैतिज रखा जाता है तो इसे क्षैतिज ध्रुवीकरण के रूप में जाना जाता है. If both antenna is placed vertical, then known as vertical polarization. यदि दोनों एंटीना को ऊर्ध्वाधर रखा जाता है तो इसे ध्रुवीकरण ऊर्ध्वाधर के रूप में जाना जाता है. जैसे कि आपको यहाँ पे दो एंटीना दिखाई दे रहा है, एक हॉरिजॉन्टल एंटीना, एक वर्टिकल एंटीना है. जो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है वो केवल टीवी के लिए यूज किया जाता है और सेकंड पे जो है वो पर्सनली मतलब ओनली कम्युनिकेट के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट, रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटीना. द रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटीना इज पिक्टोरियल representation of the distribution of the power radiation from antenna or received by the antenna. Radiation pattern वह ग्राफ है जो किसी एंटीना के एनर्जी इमिट कर दिखाता है और यह ग्राफ some energy is always radiate in underside direction known as side lobes or backside lobes. कुछ एनर्जी हमेशा अंडर स्तर दिशा में विकिरणित होता है जिसे साइड लोब्स या बैक साइड लोब्स के रूप में जाना जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. All mobile tower use direction antenna. This type of antenna is used to communicate office to office, institute to institute, personally communicate. सभी मोबाइल टावर डायरेक्शन एंटीना का प्रयोग करते हैं. इस तरह के एंटीना से ऑफिस टू ऑफिस, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट एंड पर्सनली कम्युनिकेट करने के लिए होते हैं. डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना. द एबिलिटी ऑफ एंटीना टू फोकस द इमीडिएट energy in a particular direction when transmitting and receiving energy. The ability of transmitting energy. किसी एंटीना की वह क्षमता जो किसी विशेष डायरेक्शन में अपनी एनर्जी इमिट करे डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना कहलाती है. एग्जांपल, बल्ब लाइक ओमनी डायरेक्शन ऑफ एंटीना विच कैन इमिट एनर्जी इन एनी डायरेक्शन, रेडियो, एरियल, मोबाइल एंटीना, वाईफाई राउटर. जैसे बल्ब है तो बल्ब की कोई डायरेक्शन नहीं होती है जो किसी भी दिशा में जल सकता है. इसकी चारों दिशाओं में जल सकता है. जैसे हो गया रेडियो एरियल, हो गया मोबाइल एंटीना, होगा वाईफाई राउटर, ये चारों दिशाओं में काम करते हैं ये. जैसे और
light is like a directional antenna which emits the energy in a particular direction. डिश एंटीना, आगे एंटीना, टीवी एंटीना, टार्च हो गया, जैसे टॉर्च लाइट हो गया। तो इसकी जो दिशा होती है, इसकी डायरेक्शन होती है, इसको कंफर्म होती है कि एक सीधी दिशा में जाएगी, पार्टिकुलर एक दिशा में जाती है। इसकी मतलब कोई दिशा और नहीं होती है, डायरेक्शन पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है। जैसे हो गया डिश एंटीना, आगे एंटीना, टीवी एंटीना। नेक्स्ट स्लाइड। gain of antenna. Directive gain is defined in a particular direction. The ratio of power density radiated in a direction by the antenna and the power density radiated in that direction by an aisotrophic antenna. किसी विशेष डायरेक्शन में जब कोई एंटीना एनर्जी इमिट करे और उसी डायरेक्शन में आइसोट्रोपिक एंटीना अपनी एनर्जी इमिट करे, तो उस रेशियो को गेन ऑफ एंटीना कहते हैं। I will call to from my friend Sriram continue this webinar. Beam width, bandwidth. The antenna bandwidth is defined as frequency range over which antenna can transmit or receive the information in form of EM wave. एंटीना की बैंडविड्थ वो होती है जिस फ्रीक्वेंसी पर एंटीना EM वेव को ट्रांसमिट करता है, और हाँ, जिस फ्रीक्वेंसी पर EM वेव को ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर EM वेव हाफ वेव डाइपोल एंटीना जो कि 380 मेगाहर्ट्ज से 470 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बीच पर सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, तो हम सिग्नल की एंटीना की बैंडविड्थ दोनों रेंज, जो बड़ी वाली रेंज है और छोटी वाली रेंज है, बड़ी वाली रेंज में से छोटी वाली रेंज को माइनस करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर शेयर की हुई स्लाइड पर आप देख सकते हैं, इसमें इसकी बैंडविड्थ 90 मेगाहर्ट्ज के रूप में प्राप्त हुई है। बीम विड्थ, directivity of the antenna is measured in terms of antenna beam width. The angular width of beam radiated by antenna is measured by HPBW, half power beam width. In other words, angular separation between 2 points from the center of antenna radiation pattern is referred as beam width. एंटीना की डायरेक्टिविटी बीम विड्थ के रूप में नापी जाती है और एंटीना का कोणीय रेडिएशन हाफ पावर बीम विड्थ के रूप में नापा जाता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बीम विड्थ रेडिएशन पैटर्न के सेंटर से दोनों साइड के बीच की दूरी होती है जो मैक्सिमम पॉइंट को स्पर्श करते हुए लाइनें खींची जाती हैं। जैसा कि आप शेयर की हुई स्लाइड्स में देख सकते हैं कि जो सिग्नल है उसके सेंटर से जो लोब्स निकल रही है, तो बाकी 4 लोब में दिखाई गई हैं, तो 3 लोब्स छोटी हैं और साइड वाली वो लोब्स काफी बड़ी है। तो इन दोनों के बीच में तो जो पॉइंट जो दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को हम बीम विड्थ के रूप में जानते हैं। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल माय टीचर मिस्टर सतीश चंद्रा। Hello. Thank you, Sri Ram, and thank you all students. Your presentation is very nice and very well you have explained. Now, I would like to call our alumni, Mr. Satendra Kumar ji. Please say some words about this presentation.
to students and our colleagues. Mr. about the student and this webinar. आपका माइक Thank you for this coming to join this webinar and thanks to my director sir, respected faculties and all my colleagues जिसने इस सेमिनार के बारे में बताया, इस टॉपिक के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा सुन के और वर्ड्स बहुत अच्छे थे और जो आप आपने टॉपिक चूज किया वेब एंटीना एंड वेब प्रोपगेशन, एक्चुअली क्या है कि आज के वर्ल्ड में हम टोटली जो वर्क कर रहे हैं वो वायरलेस कर रहे हैं और उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं सर हम एंटीना का। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक लगा, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि जो भी आप पढ़ते हैं सुनते हैं अपने फैकल्टी से प्लीज उसको हल्के में ना लें, क्योंकि आने वाले समय में मैं भी जॉब करता हूँ तो वो जो है वो कोई मतलब खेल नहीं है। आप जो डिप्लोमा किया कर रहे हो, जो भी आप सुनते हैं समझते हैं उसको ये ना समझे कि चलो ये हो जाएगा, चलता है, नहीं। चीजों की नॉलेज लेनी है, वर्क कैसे होना है, थ्योरेटिकल वर्क और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। यस, और आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें एनीबॉडी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। हेलो एनीबॉडी यस, जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं, क्वेरी है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ, शेयर आप वो कर सकते हैं शेयर, जो भी आप वो बोलना चाहें। hello, if you have any query please ask question. जी सर। Okay, thank you Satyendra ji, or thank you all students. Now I would like call to our director sir, director Manoj Agarwal ji, and say some word about this webinar. थैंक यू सतीश जी, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा बच्चों ने परफॉर्म करा और सत्येंद्र जी भी आए हमारे यहाँ, बड़ा अच्छा लगा। मैं सबसे पहले अपने रेस्पेक्टेड चेयरमैन साहब और एडमिनिस्ट्रेटर साहब का धन्यवाद कहूँगा, जिन्होंने हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है कि हम लोग जो है बच्चों के लिए इस तरह के प्रोग्राम और ये जो वेबिनार हैं ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, जिससे कि बच्चों को भी एक सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और मनीष जी का भी धन्यवाद करूँगा कि जितना भी ये IT से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं बिल्कुल बखूबी अपना मेंटेन रखते हैं, कोई कहीं समस्या नहीं आने देते। और स्टूडेंट्स का, भाई स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा वेल परफॉर्म करा, रियली थैंकफुल टू द स्टूडेंट्स। एंड मिस्टर सत्येंद्र कुमार जी का भी धन्यवाद करूँगा, उन्होंने समय निकाला हमारे लिए और बड़ा अच्छा बच्चों को मोटिवेट किया, बड़ा अच्छा समझाया कि भाई हम भविष्य में आप इसको खेल ना समझें, रियली इट्स ए रियल थिंग। ये जॉब करना कोई आसान नहीं है और स्टूडेंट रियली में जॉब में आता है तो सीखता है, नो डाउट। एंड लास्ट में मैं थैंक्स कहूँगा सभी फैकल्टी मेंबर्स का और स्टूडेंट्स का जिन्होंने वेबिनार को अटेंड किया। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।